अस्सलाम वालेकुम आप सबको मोहम्मद सुल्तान खान की तरफ से हम इस वक्त यूनिट नंबर 2 8614 यानी कि एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के जो हैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ वेरिएबल? अ वेरिएबल इज समथिंग दैट वेरीज और समथिंग दैट इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन। फिर है, इट हैज़ नो definite value but can assume any set of value. In other words, we can say that the variable is a characteristic that varies from one person or thing to another. फिर example of variable for human are height, weight, age, number of um, siblings, business, income and expenses. फिर country of birth, capital expenditure, material status, eye color, gender, class, grade and vehicle type are example of variation. Variation is equal to a concept that can be measured. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये क्या है, व्हाट आर कॉमनली यूज टाइप्स ऑफ वेरिएशंस? तो वो क्या है, वेरिएबल्स। कॉमनली टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स कैन बी categorized in three different ways. A क्या है, the casual relationship. Number B क्या है, the design of study and the unit of measurement. Let us discuss these three variables in some detail. तो क्या some of the types of variables are क्या है as below. अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हमने क्या लिखना है, बाइनरी वेरिएबल। अगला क्या, कैटेगोरिकल वेरिएबल। नंबर 3 पे क्या है, कौन फाउंड वेरिएबल। फिर नंबर 4 पे कंटिन्यूस वेरिएबल। फिर नंबर 5 पे डिपेंडेंट वेरिएबल। नंबर 6 पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नंबर 7 पे क्या है, नॉन नॉमिनल वेरिएबल। नंबर 8 पे क्या है, ऑर्डिनल वेरिएबल। और नंबर 10 पे क्या है, इंटरवल वेरिएबल। और नंबर 10 पे क्या है, रेशियो वेरिएबल। नंबर 11 पे क्या है, क्वालिटेटिव वेरिएबल। और नंबर 12 पे क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो ये इसकी कुछ टाइप्स हैं वेरिएबल्स की। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। स्टूडेंट्स ये क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डाटा? तो क्या है, डाटा कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ facts and detail like text, figures, observation system, observation samples, or simply describe of things, even or entity gathered with a view of drawing inference. It is a raw fact which should be proceed to get information. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास क्या है, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ डेटा। वो है इन रिसर्च डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू कलेक्ट डेटा, ऑल ऑफ विच falls into categories, that is primary data and secondary data. It is commonly classified based upon the whole collecting the data. नंबर 1 हमारे पास क्या है, प्राइमरी डेटा। ये क्या होता है, एज द नेम सुजेस्ट इज वन विच इज़ कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द रिसर्चर्स हिमसेल्फ। यानी कि ये सेल्फ होता है, हिमसेल्फ की होता है, इसमें किसी दूसरा बंदा जो इसमें दाखिल नहीं होती, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। ये सेल्फ वर्क होता है स्टूडेंट्स, ये बता दो आपको। सेकेंडरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा पॉइंट towards the second half information already collected and recorded by any other person with a purpose not related to current research problem. It is readily available from form of data and save time and cause and cost of the researcher. आगे बस क्वेश्चन नंबर 5 है, ये व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन क्या है, अ रिसर्च population is a large collection of individuals or objects to which the researcher want to results of the study to apply. फिर है, population is the main focus of a research question. फिर है जी, a research population is always known as well defined collection of individual or object known to be a similar character. आगे पास है, what do you understand by the term population? ये कह रहा है term by target population. target population क्या होती है? The target population is also known as the theoretical population and refer to the entire group of individuals or objects to which a researcher is interested to generalize the conclusion. Period. This
type of population usually has a variety or degree of characteristics. मेरे पास है what do you mean by the assemble population. इसका क्या मतलब assemble population क्या? The assemble population is also known as study population. It is the population to which a researcher can apply the conclusion of the study. This population is a subset of target population. हमारे पास स्टूडेंट सारे क्वेश्चन पढ़ दिए. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सैम्पल. ये क्या है? अ सैम्पल इज अ सिंपल अ सबसेट और अ सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन. फिर क्या है? द कंसेप्ट ऑफ सैम्पल अराइजेज फ्रॉम द इनेबिलिटी ऑफ द रिसर्चर्स टू टेस्ट ऑल द इंडिविजुअल इन अ गिवन पॉपुलेशन. आगे क्या है मेरे पास? क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स. ये क्या है? राइट डाउन द टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी. ये क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. इन it is a process that utilize some form of random selection. In probability sampling, each individual in chosen with a known probability. फिर this type of sampling is also known as random sampling or representative sampling and depend on objective judgment. फिर है नंबर 1 है सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग. इसकी जो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स वो है, इसमें क्या आता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है जी हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, फिर हमारे पास आता है सिस्टमेटिकल रैंडम सैम्पलिंग, फिर हमारे पास आता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और फिर हमारे पास आता है क्लस्टर सैम्पलिंग. आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे अपनी इस यूनिट नंबर 2 की तरफ. तो ये क्या क्वेश्चन नंबर 10 का? राइट डाउन द टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो वो क्या है? द टेक्निक डिपेंडिंग ऑन अ सब्जेक्ट जजमेंट. इट इज़ प्रोसेस when probability can be assigned to the individual objectively. फिर है it means that in the technique samples are gathered in a way does not give all individuals in a population equal change of being selected. फिर है there are 4 kinds of non probability sampling techniques. नंबर 1 क्या है? कन्वीनियंट सैम्पलिंग. नंबर 2 में क्या? पर्सपेक्टिव और जजमेंट सैम्पलिंग. मेरे पास नंबर 3 में क्या? स्नोबॉल सैम्पलिंग. और नंबर 4 पे है कोटा सैम्पलिंग. तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 2 के सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं ऑफ कोर्स नंबर कोड 8614 एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स का. तो गुड लक टू योर स्टूडेंट्स टू योर फाइनल एग्जाम्स. अल्लाह हाफिज़.